Hello and welcome to Experts Matter, an interactive series with doctors and health practitioners hosted by Expert Online. And we are delighted to have Dr. Chinna Dua with us today. For those of you who do not know much about Expert Online, it is a comprehensive virtual online clinic for doctors and other health practitioners. And you can also find out more about our features from our website, expertonlineapp.com. Today, I'm really excited because I'm going to talk to one of my very dear friends, Dr. Chinna Dua, who is an amazingly multifaceted personality, a great inspiration to me and to many others. She's a singer, she's a blogger, a vlogger, passionate cook, a social media influencer. And besides that, of course, the main thing is that she is by profession a radiologist who has had nearly 27 years of experience at breast imaging. So, Chinna, welcome to Experts Matter, and I think you are just the right person to talk to on the subject of breast cancer awareness. So, I'm really happy to have you on Experts Matter today. The pleasure is entirely mine because it's a passion for me. I really feel that we need to spread the awareness. And, we are in the month of October, but we have to carry it on 24/7, 365. As many sessions as I can do, I would like to do that. That's so good of you. So let's start from the very basic, Chinna. What is cancer? Cancer is, even the sun sign Cancer, denotes a crab. Okay. So why? Because the cancer grows like a crab. Basically, it consists of rapidly multiplying cells. In the body, what happens normally, there is a control over the growth of every cell. Once it starts growing and there is no control over it, what will happen? It will start going and invading the normal cells also. So obviously, it will invade blood vessels, it will invade lymphatics. So everything is going to go for a toss. So if it is not treated, you can imagine the kind of damage it will go. It will be on a rampage. And it all depends on how aggressive the tumor is, what is the host immunity like, what is the age of the patient, all those things we will eventually touch upon. And a lot of talk is being done about breast cancer, and what is the significance of the Pink October then? See, breast cancer, why it is significant is because initially in our country, cervical cancer was one of the leading causes, leading cancer in women. But now breast cancer is about 14% of cancers in Indian women is breast cancer. Okay. And also right now the incidence is supposed to be at 28% overall, but 22% being in urban India. And eventually they are projecting that 1 in 8, which is a huge risk. 1 in 8 women will probably develop breast cancer worldwide. Also like to tell you, it attacks males also, and the attack on the males is also on the rise. It's on the rise overall, both for females and for males. And eventually, I will also talk about a male patient of mine. He was diagnosed also with breast cancer. The first male patient who I had seen with cancer. I had done many male patients' mammogram. In the cancer calendar, a month has been assigned to every cancer. For breast cancer, October has been assigned. So many people feel that, that October is of significance because it occurs more in October. It's not like that. But the month has been just assigned. Okay? But, and there is so much of talk during October, there are webinars, all that happening. But after that, it's like as if there is a lull, which should not be the case. Pink October का हमने जिक्र किया, और symbol जो है ना breast cancer का, वो होता है pink bow, pink ribbon. तो ये मैंने जो जैसे एक मैंने ये लगा रखा है, ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है जिसमें ये, और मैंने बिंदी भी अपने पिंक. तो पिंक मैं यूजुअली अक्टूबर में जितना हो सकता है मैं पिंक पहनती हूँ, एंड पिंक इज रिलेटेड टू ब्रेस्ट अवेयरनेस. इसका बिल्कुल मोटा मोटा मैं हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले ईरान में किसी एक आदमी को हॉस्टेज ले लिया गया था, सोल्जर को. सो हिज वाइफ, she basically wanted to bring it to the attention that I want my husband back, and she had tied a yellow ribbon around a tree. The song is tied a ribbon around the old oak tree. तो रिबन बिकेम अ फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन. उसके बाद एड्स के पेशेंट्स के लिए उन्होंने रेड वाला शुरू किया.
फिर एक लेडी थी शार्लोट हेली करके, जिसके फैमिली में शी वाज अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हरसेल्फ, बट बहुत सारे लोग, आई थिंक मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर वगैरह, बहुत लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। एंड उसने क्या किया, पीच रिबन उसने और साथ में एक कार्ड लगा के कि यूएस में देखिए कि एलोकेशन ऑफ फंड नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ध्यान देने के लिए, उसके साथ एक कार्ड लगाया उसने। तो तब एक फेमस मैगजीन थी, उसके एडिटर ने बोला कि भाई हम आपके साथ टाई अप करना चाहेंगे, एंड बिकॉज शी वाज डूइंग अ स्पेशल ब्रेस्ट कैंसर इशू, but this lady said that I'm sorry, I will not tie up with you because you are very commercial, I don't want to do it with you. So then they decided that they want to do it alone, and they, because there was legal issues, तो उन्होंने पीच रिबन की जगह पिंक फीमेल्स के लिए ज्यादातर माना जाता है, तो इसलिए पिंक उन्होंने यूज किया। इनफैक्ट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग इन यशोदा हॉस्पिटल फॉर अ ईयर, सो आई स्पेशली बॉट रिबन 30th of September or 29th September. I sat and made the bows with a pin and gave it to all the female staff to wear it, for the entire month, so that there is an awareness about it. And I remember going to Dubai in the month of October, and I was very impressed. From the I was on a top floor in the hotel, I could see the swimming pool पे नीचे बेस पे इतना बड़ा पिंक बो बना हुआ था। दिस इज व्हाट आई मिस, कि यहाँ पे ये वाली बातें होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एलोकेशन ऑफ फंड, आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे देश में और बीमारियां हैं जिसकी तरफ ज्यादा फंड हमारे डाइवर्ट होते हैं और करने की जरूरत है, बिकॉज पॉपुलेशन इज नॉट homogeneous and हमारी problems are different from the problems of the developed countries, but I think जितना awareness हम कर सकें, बहुत कितने पोस्टर्स आप देखिए इलेक्शंस पे कितने पोस्टर्स लग जाते हैं, तो ये नहीं लग सकता है क्या? बिल्कुल। द अवेयरनेस आई फील कि बसेस के पीछे लगाना या बोर्ड्स लगाना, जैसे आई बिलीव हैदराबाद में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इन अक्टूबर वर lit pink. So these kind of things should be done in Delhi. I know this is lockdown year and we haven't gone out much, but in normal circumstances also, I don't see any hoardings. Though there are a lot of talks now thanks to the social media, but breast is looked at as like a sex symbol. There is so much of taboo. People don't talk about breast cancer. In fact, many women would not even go and seek help. तो वो ऑब्वियसली वो बढ़ती जाती थी वो बीमारी अंदर, ठीक है। इवन नाउ इन आवर कंट्री द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द गायनेकोलॉजिस्ट, ओके। लोगों को लगता है कि बहुत आसान होएगा औरत से बात करना, विच इज वैलिड, ठीक है। एंड फिर गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो दे विल रेफर द पेशेंट टू द सर्जन, और सर्जन, फीमेल सर्जन्स बहुत कम, अभी भी हमारे देश में बहुत कम है, वर्ल्ड वाइड कम है। मेरी अपनी बहन जो है वो भी ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है। तो इसीलिए हम लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है और इसको एक आम विषय मानना चाहिए। इसीलिए हमने ये बात करी थी ना कि बाइलिंगुअल इसको रखेंगे। मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो अमेरिका या स्वीडन उन सब देशों में हुआ, तो उनकी जो पब्लिकेशंस है वो इंग्लिश में होती हैं। कि कितना वो ट्रांसलेट होता है वर्नाकुलर में, ज्यादा नहीं। तो इसको मेरे हिसाब से हर एक लैंग्वेज में होना चाहिए ये अवेयरनेस। लास्ट ईयर इसीलिए मैंने 2 वीडियोस बनाए थे इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, जिसको व्हाट्सएप पे खूब सर्कुलेट किया गया। यहाँ तक कि अमेरिका से मेरे को लोगों का मैसेज आया कि हम आपका वीडियो हमारे पास पहुंचा, व्हिच आई वाज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट। कि आइडिया यही है कि इसमें कोई मेरा कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, बट आई फील कि एज अ डॉक्टर इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड, क्या फायदा है। अब ये जैसे किटी पार्टीज होती हैं, 10 मिनट निकाल लीजिए, कुछ अवेयरनेस वाला टॉपिक, या किसी डॉक्टर को बुला लीजिए, वो आपको 10 मिनट आके किसी चीज के बारे में अवेयर करा दे। सी लाइक डोमेस्टिक स्टाफ, वी कैन मेक देम अवेयर। So I shared it with all my domestic staff last year, and so did so many of my friends, and they said that it reached the interiors of Bihar and all, because now it's at the touch of a button. Everybody has YouTube on their phone. So why not use it? This was spread by word of mouth. What are the causes of breast cancer? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कैंसर जो है, कोई भी कैंसर हो, इट इज मल्टीफैक्टोरियल। कोई एक फैक्टर आप सिर्फ नहीं कह सकते। इट इज अ डिजीज ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, so the immunity goes down with age. Everybody is prone to cancers more as you age. But having said that, breast cancer is being seen a lot in the younger individuals also. मैंने 26 साल की उम्र में किसी को कैंसर देखा, 28 साल में मैंने देखा। What is it? एक को होता है, एक को नहीं होता है।
ठीक है। तो इसमें ये है कि आपकी अपनी इंडिविजुअल बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसमें डेफिनेटली एक अंतर है। देयर आर जेनेटिक म्यूटेशन कई कारणों से होती है, जो बैकग्राउंड रेडिएशन वगैरह होता है उससे भी जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है। वो जो वो एक रोग सेल की तरह हो जाता है, वो इस किस्म से अनब्राइडल्ड वो उसका ग्रोथ शुरू हो जाता है। सो ये फैमिलीज में फिर रन करता है। ये फैमिली हिस्ट्री जो है वो यंगर एज ग्रुप में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर आप मेनोपॉज के पहले आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सो देन इन प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर फैमिली हिस्ट्री इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस। इन 10% केसेस देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। और जितना नजदीकी रिश्ता होगा, जैसे माँ हो या बहन हो, मासी थोड़ी फार रिमूव हो जाएगी, ग्रैंड मदर और फार रिमूव हो जाएगी, लाइक दैट। तो कौन कितना क्लोजली रिलेटेड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये। जैसे कि मेरे कोई रिलेटिव हैं, उनको अगर हुआ है करीब 60 साल के बाद, तो वो जेनेटिकली इतना नहीं माना जाएगा, वो एक रिलेटिव माना जाएगा। बट अगर जैसे यंगर एज ग्रुप में हुआ है, तो जैसे कई बार 35 में हो गया, 40 में हो गया, पीरियड्स अभी बंद नहीं हुए उसके पहले हो गया, उसका सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। उसमें फिर जेनेटिक टेस्टिंग होती है, BRCA1, BRCA2। एंजेलिना जोली, वी हैड ऑल रेड अबाउट and how she had got her mastectomy done and all that. But जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है, बहुत सोच विचार करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके कि इसका जो आउटकम होगा उसके बाद हम क्या एक्शन लेने वाले, सारी बातें समझ के उसको करना चाहिए। इरेस्पॉन्सिबली नहीं करना चाहिए। कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर, इट्स हार्मोन डिपेंडेंट है। द अर्लियर यू स्टार्ट योर पीरियड, और जितना लेट मेनोपॉज होएगा, तो वो पीरियड जिसमें आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही है टू द हार्मोन, दैट ड्यूरेशन इज वेरी हाई। जल्दी महावारी शुरू होना और लेट खत्म होने से आपके शरीर को खतरा ज्यादा है। अगर आपने प्रेगनेंसी नहीं करी, मतलब बच्चा ही नहीं करा, कि अगर आप 30 के पहले पहला बच्चा कर ले तो बहुत ही अच्छा है, वो आपके लिए प्रोटेक्शन है। प्रेगनेंसी में 9 महीने आपके पीरियड नहीं आते हैं, वो आपकी बॉडी का एक्सपोजर जो था टू द हार्मोन वो खत्म हुआ, तो बीच में गैप आने से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। हर एक डिलीवरी के बाद आपकी जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ती है। तो इसलिए कहते हैं ज्यादा बच्चे होने से प्रोटेक्शन होती है। बट ये सब चीजें, जैसे मैंने कहा, मल्टीफैक्टोरियल है। आई हैव सीन women with 8 children having breast cancer, and there are women who have not had children at all and not having. breast feeding जो है वो एक प्रोटेक्शन होता है ब्रेस्ट कैंसर के आगे। तो अगर जो लोग दूध नहीं पिलाते हैं बच्चों को, तो उनमें जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, कि यानी कि चांसेस ऑफ हैविंग कैंसर वो ज्यादा हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी तो मेरे को लगता है हर एक चीज के साथ कनेक्टेड है हेल्थ, एक्सेप्ट आई थिंक हार्ट डिजीज में, कि अगर आपको हार्ट डिजीज है, बहुत फिजिकली एक्टिव नहीं हो सकते हो। बट हार्ट डिजीज होता भी इसलिए क्योंकि आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, ये भी कारण है। आप बैठे रहेंगे एक जगह पे और नहीं मूव करेंगे, दोज आर रिस्क फैक्टर्स। मोटापा पेट वाले हिस्से में, द मोर द एब्डोमिनल गर्थ और इंक्रीज्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्टमक, उससे आपका कैंसर होने का ज्यादा चांस है। ब्रेस्ट में हम देखते हैं कि एक तो ग्लैंड्स होते हैं और एक फैट होता है, ठीक है। ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, मतलब दूध पिलाने के लिए जो उसके अंदर होते हैं। सो अगर ज्यादा होगा ग्लैंडुलर टिश्यू एंड इट इज डेंस ब्रेस्ट, ठीक है। अदर थिंग इज यू कैन हैव मोर फैट एंड इट विल बी फैटी ब्रेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोटे हो इसलिए आपका फैटी ब्रेस्ट है। पतले से पतले लोगों में मैंने पूरा फैटी ब्रेस्ट देखा है, और मोटे से मोटे लोगों में मैंने फैट है ही नहीं ब्रेस्ट में और सारा ग्लैंड देखा है। सिर्फ मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करेंगे तब हम कह सकते हैं कि इसमें ग्लैंड ज्यादा है या इसमें फैट ज्यादा है। किसी का भी ब्रेस्ट देख के फील करके नहीं कोई कह सकता है। जितना ज्यादा ग्लैंड होगा आपका चांसेस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजेस। जिसका ज्यादा ग्लैंड है उसमें थोड़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्रीनिंग जो है, चेकअप्स जो है, that will increase. We have to do more frequent checkups so that we are not missing the cancer. वो कैंसर जो उसमें छिप जाता है। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगी कि हम अगर एक क्रिकेट फील्ड में क्रिकेट खेल रहे हैं और एक जंगल में हम क्रिकेट खेलेंगे या बॉल, ठीक है। अब बॉल कहाँ पे आपको ज्यादा आसानी से नजर आएगी, क्रिकेट फील्ड में या जंगल में अगर चली गई तो जाहिर सी बात है आपकी क्रिकेट फील्ड में आपको अच्छे से नजर आएगी। बॉल जैसा ही होता है लंप, वो आपका छुप गया, आपको नजर नहीं आएगा। और अगर फैट है, कोई पेड़ वगैरह नहीं है, तो बॉल आपको आसानी से नजर आ जाए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब शुरू हुए, काफी लोग लेते थे, तब हार्मोन्स का साइड इफेक्ट्स नहीं पता होता था। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उससे ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हार्मोन है वो भी।
सेम वे अगर आप पीरियड्स बंद होने के बाद, अगर आप मेनोपॉज के बाद, क्योंकि बहुत सारी सिम्टम्स होती है बॉडी में, अचानक से दैट हार्मोन इज गॉन, समटाइम यू हैव टू टेक दोस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज वन मोर कॉज ऑफ गेटिंग अ कैंसर. ठीक है. देन इफ यू हैव कैंसर एल्सवेयर इन द बॉडी, कोई भी और जगह का, वो इंटर रिलेटेड हो सकते हैं. तो जिसको ओवरी का कैंसर उसको चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है. फिर अल्कोहल, स्मोकिंग, हर चीज में वो एक रिस्क फैक्टर है. और सबसे जरूरी बात जो है वो है स्ट्रेस. तो मेरा यही कहना है, बीमारियों की जड़ है वो है स्ट्रेस. तो आप रिलैक्स कर सकते हैं तो ये योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में क्या होता है, आपका पॉजिटिव हार्मोन जो एंडोर्फिन बोलते हैं वो रिलीज होता है. तो इसीलिए स्ट्रेस जो है, और मैं यही बोलती हूँ, अगर गांठ भी डिस्कवर होगी, कहना आसान है कि किसी का गांठ डिस्कवर हो तो कि आप चिल करो, बट आप उस पर ध्यान दो, तवज्जो दो उसको. बट ये नहीं कि आप स्ट्रेस इतना हो जाओ कि उससे आपको और बीमारियां हो जाए. आपको बॉडी में और कहीं पे कैंसर है और आपको रेडिएशन मिली है उसकी वजह से, तो वो आपको एक्सपोज कर दिया. साथ ही में ये जोड़ना चाहूंगी, बहुत लोग मैमोग्राफी इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि सिर्फ सुनते हैं कि मैमोग्राफी मतलब रेडिएशन. नहीं, ये गलत बात है आपकी. क्योंकि आपको जो बैकग्राउंड से व्हाट रेडिएशन यू गेट, दैट इज फ्रॉम द कॉस्मोस, लाइक फ्लाइट, एयर ट्रैवल से, समुंदर से, स्टोन से, वो 6 मैमोग्राफी एक साल में उसके बराबर आपको रेडिएशन मिल रहा है. तो एक ये 7वां जो करोगे जो आपके फायदे के लिए, उससे कोई भी नुकसान नहीं है, उसको कराना चाहिए. Chinna, you think the pollution, the adulterated food? बिल्कुल सही. पोल्यूशन, एडल्ट्रेशन और प्रेजर्वेटिव्स वगैरह से बिल्कुल हो सकता है. क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं चिन्ना? देखिए, इसमें हम अपने रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रख सकते हैं. बाकी अर्ली डिटेक्शन इज द की, यानी कि जल्दी से जल्दी ये पकड़ा जाए तो इसका पूरा इलाज, मुकम्मल इलाज हो सकता है. कुछ लोगों का सोचना होता है कि जब हम प्रिवेंट ही नहीं कर सकते हैं तो रहने दो, जब होएगी तो देखी जाएगी. नहीं, इसमें अर्ली डिटेक्शन, जितने छोटे से मटर के दाने के बराबर में आपका पकड़ा जाएगा, आप लंबा जी सकेंगे. यू विल हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. द चांसेस ऑफ recurrence would be low, that the chances of complete treatment will be much more. कोई भी बीमारी हो, इनिशियल स्टेजेस में आप उसे कंट्रोल कर लें, बाद में आप लोग. So what are the early symptoms one should look out for? क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? इन जनरल जो ब्रेस्ट में सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है पेन. बहुत मोटा मोटा, कैटेगोरिकली नहीं बोल रही मैं कि पेन is usually not the sign of cancer. ठीक है. I know your question has been what are the symptoms, but I'm just wanting to say because बहुत सारे लोगों को डर पड़ता है कि हाय मेरे को पेन हो रहा है, दैट मीन्स मुझे कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है. पेन ज्यादातर जो है कैंसर की निशानी नहीं होती है. और अगर होती तो बहुत अच्छा होता कि अटेंशन मिल जाता, पहले तो चले जाते उसको दिखाने के लिए. पेनलेस होता है, साइलेंट होता है, वो धीरे धीरे पनपता रहता है. जब बहुत आगे स्टेज पे पहुंच गया तब शायद आपको जाके पेन करेगा. या आप लकी हो तो, जैसे मेरी एक फ्रेंड को हुआ था, उसका पेन से ही उसका डायग्नोज हुआ था, बहुत डायग्नोज हो गया, कोई कीमोथेरेपी नहीं पड़ी. बहुत रेयर केस होते हैं. ठीक है. तो पेन ज्यादातर जो होता है यंगर इंडिविजुअल्स, खासकर जिनका मेनोपॉज नहीं हुआ होता है, जिनके पीरियड्स चल रहे होते हैं, तो आप ध्यान रखिए वो पेन साइक्लिकल होगा, यानी कि हर महीने होएगा आपको. यू विल गेट द पेन जो माहवारी के बीच में, जैसे जिस टाइम पे वो एग बनता है, ओव्यूलेशन कहते हैं, उस टाइम पे आपको पेन होएगा, क्योंकि वो हार्मोन बढ़ जाता है बॉडी में, तो वाटर रिटेंशन सब हो जाता है हमको, तो टाइटनेस फील होती है, कंजेशन. उसी तरीके से पीरियड के एकदम पहले हमारे ब्रेस्ट बिल्कुल हैवी और टेंडर हो जाते हैं, बिल्कुल हाथ लगाने से मतलब पेन होता है. तो वो सब इसकी वजह से होता है, क्योंकि साइक्लिकल चेंजेस. तो आप नोट करिए, अगर हर महीने आपको हो रहा है तो वो हार्मोन रिलेटेड है. अगर आपको रह रहा है सारा टाइम तो आपको चेक कराना चाहिए. पेन के अलावा सबसे ज्यादा जो कॉमन सिम्टम होता है वो है गांठ. गांठ यानी कि लंप. ठीक है. अब लंप जो है उसका साइज जो है वो मैटर करता है. जितना छोटा होगा उसका पूरा ट्रीटमेंट होने का ज्यादा चांस है. तो हर एक गांठ जो है वो कैंसरस होती है ऐसा नहीं है. एक फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, एक सिस्ट होता है जो बलून की तरह होता है, पानी भरा होता है. सो बी अवेयर ऑफ दैट. सो डू नॉट पैनिक. ओके. बट डेफिनेटली गेट इट चेक. अगर वो बढ़ रहा है
तो डेफिनेटली आपको उसको चेक कराना चाहिए। हैविंग सेड दैट, कई बार सिस्ट भी बढ़ जाती हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं बढ़ती, ठीक है। आप जब नहाने जाते हैं तो अपना ब्रेस्ट को जरूर मिरर में देखिए। अगर आपको लग रहा है दोनों ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत फर्क तो दोनों ब्रेस्ट में होता है, बट अचानक जो ब्रेस्ट है आपकी इतनी सिकुड़ नहीं रही थी, मतलब सिकुड़ने लगी है, और या फिर बढ़ने लगी है, या उसके ऊपर जो स्किन है दैट इज गोइंग इनसाइड, स्किन रिट्रैक्शन, स्किन आपकी चमड़ी जो अंदर खिंच रही है, निप्पल जो है वो अंदर खिंच रही है। अगर निप्पल खिंच रही है और पहले नहीं थी ऐसे, और बाहर भी नहीं आ रही है, अब कईयों का होता है कि निप्पल रिट्रैक्शन होता है पैदाइशी, मतलब कंजेनिटली हो जाता है और बाहर निकलता नहीं है। कईयों का होता है कि वो अंदर चला जाता है, बाहर निकल जाता है। अगर आपका पहले ऐसा नहीं था और अचानक कोई चेंज जो होगा ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। चेंज इन द अपीयरेंस, एनी चेंज। सो आपका जो है, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर ब्रेस्ट की। जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के खिलाफ आजकल ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हर एक की ब्रेस्ट जो है ना थोड़ी गठीली होती है, लंपी होती है, और सही से अगर आपको करना नहीं आया, यानी कि फ्लैट ऑफ द हैंड से बोलते हैं, फ्लैट, ठीक है, लोग ऐसे करके करते हैं, ऐसे करके फील करोगे तो ब्रेस्ट हमेशा गठीली, हथेली से। अगर आप वैसे नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप पैनिक करना शुरू करोगे, ये तो यहाँ पे गांठ है, यहाँ पे तो गांठ है लग रहा है। तो इसीलिए फ्लैट ऑफ द हैंड से अगर आपको ढंग से, या तो डॉक्टर से या किसी से, या आप रूरल एरियाज में है, गांव में, तो आपके हेल्थ वर्कर से सीखिए। इफ यू हैवंट लर्न द प्रॉपर वे देन इट इज अ स्कैरी थिंग, ओके। बट जस्ट नो योर ब्रेस्ट कि ये पहले चीज ऐसी नहीं थी और अब है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज रोज फील करेंगे। हम कहते हैं कि जैसे ही पीरियड्स हो जाए, महावारी आ जाए, इमीडिएटली तब आपके ब्रेस्ट सॉफ्ट होते हैं, तब आप फील करिए हर महीने। जिनके मेनोपॉज हो जाता है, इफ यू फिनिश्ड विद योर पीरियड्स, द बेस्ट टाइम इज कोई भी एक दिन, कीप वन डे फिक्स्ड इन द मंथ, either the 1st or the 15th or whatever suits you, and that day you will feel your breast, okay, and look for any change, okay। फिर स्किन के ऊपर अगर कोई लाल हो गया है या नीला हो गया, चोट से भी लाल हो सकता है, मैं नहीं कह रही नीला भी हो सकता है, बट अगर कुछ जो आपको लगता नहीं कि कोई वजह थी, ये कैसे हो गया मेरा, ठीक है, और उसके अलावा कोई उस जगह से उभर रहा है। फिर एक स्किन हम बोलते हैं, जो संतरे का आपने छिलका देखा है ना, जिसमें छोटे 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 छेद जैसे होते हैं, हाँ, प्योदी ऑरेंज बोलते हैं हम, जो ऑरेंज के स्किन के जैसे, ऑरेंज पील स्किन, वो बड़ा सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि आपका स्किन इन्वेड हो गया है, वजन आपका घट रहा है, लॉस ऑफ वेट, एपिटाइट आपकी कम हो रही है, भूख कम लग रही है। और भी कारण हो सकते हैं, डायबिटीज में भी हो जाता है कि आपका वेट कम हो रहा है, बट आप उसे इग्नोर ना करें। एक और चीज जो गांठें, यहाँ पे एक तो बगल में अब गांठ, और एक इधर कॉलर बोन जो बोलते हैं उसके ऊपर अगर आपकी गांठें हैं, या यहाँ आपको गांठें महसूस हो रही, निप्पल कई बार जो होता है वो जैसे सूख रही है, उसके ऊपर कुछ जम रहा है, निप्पल का कैंसर होता है, पेजेट्स डिजीज, उसमें भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको डिस्चार्ज निकल रहा है, नॉर्मली भी डिस्चार्ज निकलता है ब्रेस्ट से, क्योंकि मिल्क ग्लैंड है, तो हार्मोन चेंजेस होते हैं। कई बार होता है कि लोग लाइट कलर्ड ब्रा पहनते हैं तो देखते हैं कि उसमें हरा या पीला कुछ निकला है, ठीक है, थोड़ा ये नॉर्मल होता है। बट अगर आपको ब्लड निकल रहा है और एक जो क्लियर पानी वाला डिस्चार्ज, और वो भी सिर्फ एक पॉइंट से निकल रहा है, बहुत सारे पॉइंट से निकल रहा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हार्मोनल चेंजेस होएगा। और अगर एक पॉइंट से निकल रहा है और वो भी वाटरी है, तो वो हम कहते हैं पैपिलोमा होता है, जो डक्ट के अंदर एक बन जाता है, जो नली होती है उसके अंदर। So it could be that also. Whenever you take off your bra, preferably a light colored bra, तो आप ब्रा उतारें तो एक बार देख लें, बट आप दबा दबा के ना देखें, बिल्कुल हल्का दबाना होता है। हम कहते हैं ना, चेक फॉर निपल डिस्चार्ज, बहुत लाइटली यू हैव टू प्रेस, नॉट दैट यू प्रेस इट सो मच दैट यू कॉज ट्रॉमा। बहुत ज्यादा जोर से करेंगे तो अंदर जख्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होएगा, वो खून रिश्ता रहेगा, फिर आपको टेंशन होगी कि भाई ब्लड क्यों निकलना शुरू हो गया। जैसे हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, अगर हम दूध पिलाना जब तक हम बंद नहीं करते तो दूध तो निकलता ही आता है ना, टाइम लगता है ना दूध को सूखने में भी, जब हम बंद कर देते हैं फीड करना। और कौन सा ब्रा पहनते हैं, डार्क या अंडरवायर या कुछ, उससे कोई रिलेशन नहीं है कैंसर का। ये मैं बाय द वे बता ही रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। मेरे पेशेंट्स जब उतारते थे अपने कपड़े, मुझे लगता था कि लोग कैसे अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। इतनी इल फिटिंग ब्रा होती थी, या तो इतनी टाइट होती थी,
कोई साइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों को कि किस तरीके का ब्रा होना चाहिए, कि आपकी कवरेज फुली होनी चाहिए, सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होता था। अब कोई भी चीज टाइट जो है ना, टाइटनेस जो है सर्कुलेशन को ब्लॉक करना जो होता है, दैट इटसेल्फ वो, और वो कहते हैं, हम कहते हैं क्रॉनिक इरिटेशन, यानी कि यहाँ तक कि आपकी घड़ी भी अगर बहुत दिन तक आपके चमड़े से लगती रहे, कोई आपका बहुत टाइट हो, या जूता आपका टाइट फिटिंग, या डेंचर्स आपके इल फिटिंग हो, ये सारे कॉजेज होते हैं उस जगह के कैंसर के। मतलब आप अगर दिन में घर में ना पहने ब्रा या रात को ना पहने, कोई नुकसान नहीं है, बट ओनली प्रॉब्लम इज कि सपोर्ट नहीं होने से आपको लटकता रहता है, जितना ड्रैग होएगा, खिंचाव होएगा, उतना पेन होएगा। अंडरवायर आपका इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि वो स्किन को काट रहा है, फिर वही क्रॉनिक इरिटेशन वाली बात आ जाएगी उससे। इसके अलावा द अदर थिंग इज स्क्रीनिंग। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्क्रीनिंग? आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट। एक होता है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, द अदर वन इज डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। स्क्रीनिंग इज व्हेन यू हैव नो सिम्टम्स, ठीक है, यू हैव अंडरस्टूड दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स होने के पहले मैं जाके चेक करा रही हूँ, एहतियात बरत रही हूँ, वो होता है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। डायग्नोस्टिक कब होगा? जब आपको सिम्टम हो गया, चाहे वो पेन हो, चाहे वो लंप हो, चाहे वो डिस्चार्ज हो, चाहे वो स्किन का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मगर आपको कुछ कारण है जिसकी वजह से आप गए हैं, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जो होती है उसका प्रोटोकॉल होता है, हर एक देश का अपना अपना होता है, बेस्ड ऑन की व्हाट इज द इंसिडेंस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। अब हमारे देश में ये कहते हैं कि 35 to 40 के बीच में एक बार आप करवा लीजिए, ठीक है। एंड इफ यू हैव अ रिलेटिव, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज द रिलेटिव इज, और इफ योर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, आपको आपने जेनेटिक टेस्टिंग आपने करवाई और आपको बोला गया कि आपके चांसेस ज्यादा हैं, देन यू विल गेट इट इवन अर्लियर। जैसे अगर आपके घर में आपकी सिस्टर को 35 में हो गया है, सो द सर्वेलेंस इन यू हैज टू स्टार्ट 10 years यंगर, यानी कि 25 साल की उम्र से आपकी स्क्रीनिंग शुरू हो जानी चाहिए। जितने यंग होते हैं ग्लैंड ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि बॉडी प्रिपेयर कर रही है आपको प्रेगनेंसी के लिए, मिल्क के लिए, तो उस एज में मैमोग्राफी में कम दिखता है, और जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो अल्ट्रासाउंड बेटर होता है। तो आप हमेशा डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट है, बट यंगर एज ग्रुप में हम वी ऑलवेज प्रेफर टू डू एन अल्ट्रासाउंड फर्स्ट, ठीक है। पहले अल्ट्रासाउंड किया, अगर हमें लगा कि कुछ हमें शक है और हमें करना पड़ेगा, देन वी विल डू अ मैमोग्राफी, ओके। अदरवाइज वी विल डू एन एमआरआई, बिकॉज एमआरआई इज फ्री फ्रॉम रेडिएशन। आफ्टर ऑल वो यंग, देख लीजिए 25 में अगर आप कर रहे हैं, प्रॉबेबली अनमैरिड है, ठीक है, तो उसको हम रेडिएशन से क्यों एक्सपोज करना चाहेंगे, ठीक है ना, वो आगे प्रेगनेंसी होनी है उसकी, ठीक है। तो जितना डेंसिटी में हमें दिखने वाला नहीं है, तो इधर अल्ट्रासाउंड या एमआरआई, और जरूरत पड़ने पर मैमोग्राफी करना पड़ सकता है। आप कई बार क्या होता है, लोग बोलेंगे कि जी हमने उस टॉक में सुना था, मैडम ने बोला था कि नहीं करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, यू हैव टू रेस्पेक्ट द डॉक्टर्स डिसीजन। इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसकी केस हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, उसका ब्रेस्ट के पैटर्न पे डिपेंड करता है। जो मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ये तीन चीजें हैं। ये थर्मोग्राफी वगैरह जो आजकल निकल रहे हैं, या टॉर्च निकल रहा है कि दिस इज द वे टू डायग्नोस, इट्स एब्सोल्युटली not yet proven that anything of a benefit at all, okay. So these are the three things जिस पे हमें रिलाई करना चाहिए, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई। द ऑर्डर कि कौन सा पहले किया जाएगा, कौन सा बाद में किया जाएगा, विल बी डिपेंडेंट ऑन योर एज, ठीक है। तो पहले यंगर एज ग्रुप में पहले हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो मैमोग्राफी और एमआरआई करेंगे। सीधा कि मैं एमआरआई कराना चाहूंगी, एमआरआई एक तो एक्सपेंसिव के अलावा इट डज नॉट, देयर आर मेनी थिंग्स जो मैमोग्राफी बताती है आपको, जो अल्ट्रासाउंड भी नहीं बताता है और ना ही एमआरआई बताता है। तो आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये हमारे खासकर हमारे देश में होता है। उसका तो जी मैमोग्राफी हुआ था, और नहीं, उसका तो अल्ट्रासाउंड से ही पता चल गया था जी, मैमोग्राफी में तो आया ही नहीं था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि उसका डेंस ब्रेस्ट था। आपको ये मालूम है कि आपका ब्रेस्ट डेंस है कि नहीं है? मैं पूछना चाहती थी, ग्लैंडुलर और डेंस ब्रेस्ट जिनके हैं, तो उनका क्या सीक्वेंस होना चाहिए? ब्रेस्ट फील करके तो नहीं कह सकते ना। अगर एक 45 ईयर ओल्ड लेडी आई है, पहली बार मैमोग्राफी के लिए आई है, हाउ डू आई नो दैट हर ब्रेस्ट इज dense or it is fatty? I cannot make out by feeling.
Only after the mammography. प्रोटोकॉल विल बी कि सबसे पहले मैमोग्राफी करूंगी, अगर तो फैटी है, सब कुछ दिख गया, हंकी डोरी, लेट हर गो। अगर मुझे लगा कि ये तो डेंस है जी, तो मुझे अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा उसमें। अल्ट्रासाउंड के बाद मुझे लगता है फर्दर मुझे करना है तो मुझे एमआरआई भी करना पड़ सकता है। एक कैल्शियम डिपॉजिट जो होता है, छोटा छोटा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जो एक कैंसर की निशानी होती है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन बोलते हैं मैमोग्राफी में। वो सिर्फ मैमोग्राफी में दिखती है, और सिर्फ मैमोग्राफी में ना गांठ दिख रही है ना कुछ, बट छोटे 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 कैल्शियम का जमाव दिख रहा है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, माइक्रो कैल्सिफिकेशन दैट कैन बी ऑमिनस। अब बहुत लोग कहते हैं जी मैं कैल्शियम खाती हूँ इसकी वजह से, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कैल्शियम खाएं ना खाएं, उससे कोई लेना देना नहीं, उसका उसकी वजह से नहीं कैल्शियम जम रहा आपका, ठीक है। ये वो कैंसर की ही एक निशानी है, वो दिखाता है। मेरे एक पेशेंट थे, स्क्रीनिंग के लिए आई थी, 65 साल की, सिर्फ मतलब 2 मिलीमीटर जितना उतने एरिया में उनके वो कैल्सिफिकेशंस थे, और उसको डायग्नोज हुआ, सारे बाकी टेस्ट होके, और वो मैलिग्नेंट निकला, ना उनको कीमोथेरेपी लेने की जरूरत पड़ी ना रेडिएशन, और ठीक ठाक। तो वो ऊपर वाले की कृपा है। मगर इसमें ये है कि हम इतना एहतियात बरत सकते हैं कि हम रेगुलरली जाके करा लें अपना टेस्ट, ठीक है। तो 35 to 40 में हम एक बार करते हैं, 40 to 50 के बीच में हम कहते हैं एवरी 2 years। अगर आपको कोई और वजह नहीं है कि आप और फ्रीक्वेंटली कराएं, और बीच बीच में अगर आपको कोई ऐसी गांठ दिखी है जिसको फॉलो अप करना है अल्ट्रासाउंड में, तो कोई कोई लंप ऐसे होते हैं बिनाइन लंप को हम फाइनली बिनाइन बताने के लिए हर 6 महीने हमें उसको अल्ट्रासाउंड करना पड़ सकता है। जो बिनाइन लंप है कि 2 साल तक हम उससे फॉलो करते हैं हर 6 महीने में, और जब जरूरत पड़ेगी एमआरआई के लिए तो एक वजह होगी, तभी आपको बोला होगा। 50 के बाद जो होता है वो डिपेंड करता है अगेन आपका कैसा ब्रेस्ट है, डेंस ब्रेस्ट है कैसा है। अगर तो फैटी है तब आपको 1.5 साल या 2 साल के बीच में, और अगर आपके फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 1.5-2 साल में एक बार काफी है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है तो तब हर साल आपका चलता रहेगा। अब पूछेंगे कब तक चलेगा, यूजुअली कहते हैं 75 तक। एक और थियरी यही है कि अगर आपके मतलब एक्सपेक्टेड है कि 10 साल और तो आप जिएंगे, बस उतना तक आप कराते रहिए, उसके बाद आप बंद कर दीजिए। मतलब होता है 85 में भी देखते हैं हम, 90 में भी देखते हैं। जैसे जैसे देखिए टाइम बदल गया है, हम लोग ज्यादा देर जी रहे हैं, जैसे जैसे जिएंगे तो कमजोरी भी तो एज के साथ साथ आ रही है ना, तो बीमारियां भी नई नई दिख रही हैं हमें। ब्रेस्ट कैंसर राइज पे तो है ही है। बहुत लोग कहते हैं कि ज्यादा लोग चेकअप कराने के लिए आते हैं या ज्यादा फैसिलिटीज हो गई हैं, वो बात आपकी जरूर ठीक है। ये बात भी है कि एज जो है जिस तक हम जी रहे हैं वो भी ज्यादा है, मगर स्ट्रेस वो सब बढ़ गया, एडल्ट्रेशन, पोल्यूशन, सब कुछ बढ़ गया। ये चीज बढ़ी तो है, ये नहीं है कि सिर्फ टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं या लोग आगे आ रहे हैं, इसके लिए ये बात नहीं है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है डेफिनेटली। चेकअप में चिन्ना वो नीडल का भी यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या हम लोगों को क्या कहना चाहिए? इसके बारे में मैं बहुत अक्सर बात करती हूँ, अभी हाल ही में भी मैंने इसके बारे में बात करी है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे मेरे पेशेंट आते थे, सीधा पहला काम है जी गांठ है, तो हमारे डॉक्टर ने बोला, पैथोलॉजिस्ट को बुला दिया, नीडल डाल दिया। ये सबसे गलत काम हम करेंगे, क्योंकि नीडल डाल के सपोजिंग से वो पानी भरा हुआ है, और वो भी ब्लाइंड आपने नीडल डाल दी, ठीक है, आपने बिल्कुल ब्लाइंडली डाल दी, उसमें आपने देखा नहीं कहाँ जा रहा है आपका नीडल, गॉड नोस उस लंप में गया भी नहीं गया। आप ऐसा गांठ है, ऐसे में नीडल डाल रही हूँ, उसके पार भी हो सकता है, उसके पार जो नॉर्मल टिश्यू उसमें चला गया, आपने बोल दिया नॉर्मल है, उस लंप से तो निकला ही नहीं। तो पहली बात है कि जो जितनी भी नीडल टेस्टिंग होती है वो सारी इमेजिंग खत्म हो जाए, आपकी मैमोग्राफी खत्म हो जाए, अल्ट्रासाउंड खत्म हो जाए, एमआरआई खत्म हो जाए, उसके बाद ही आपने करानी है, ताकि उसमें कोई बदलाव ना आ जाए। I have seen when people have put in needles in such a bad manner that they have literally mutilated that particular area. अंदर ब्लीडिंग हो गई, उसका पूरा पैटर्न, सेल्स वगैरह कुछ दिख नहीं रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, वो चीज छोटी सी थी वो इतनी बढ़ गई, कुछ बाहर स्किन पे भी कलर आ गया, नीला पर लाल पर, तो पूरा हमारा भी डायग्नोसिस जो है चेंज हो जाता है। तो इसीलिए सारा कुछ खत्म करने के बाद फिर नीडल डालिए। और नीडल में भी 2 किस्म के, पहले होता था फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC FNAB बोलते थे, और दूसरा है कोर बायोप्सी। अब हम कैटेगोरिकली कहते हैं प्लीज पतली वाली नीडल FNAC नहीं डलवाइएगा। बहुत लोगों का कहना है कि पैथोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हो तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, नहीं, प्लीज ये
जितने भी अच्छे पैथोलॉजिस्ट हो, हमें जो पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें कोर बायोप्सी से ही मिलती है। थोड़ी मोटी नीडल होती है, थोड़ा पेनफुल होता है, उसमें क्या होता है वैक्यूम से आपका थोड़ा सिलिंड्रिकल टिश्यू सक इन होता है। अब सोचिए जब सिलिंड्रिकल टिश्यू, थोड़ा ज्यादा टिश्यू मिल जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी ना उसमें। हमें अगर कैंसर है तो उसकी आगे ट्रीटमेंट भी, क्योंकि कैसे रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर्स, वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। बी अवेयर ऑफ ना ये कि हम लोग को एनुअल चेकअप कराना चाहिए या जो भी फ्रीक्वेंसी हमारे केस के मुताबिक है, वी शुड टेक केयर ऑफ दैट. But what I've seen is still people hesitate. There's a lot of anxiety about going for a mammogram. So maybe if you explain to us what mammography is all about, in the sense, kya hota hai, what's the procedure, and how to prepare ourselves when we are going for a mammography, and what is exactly the process. Maybe people will feel more confident. Very good question. Very, very important question. And I must tell you that in 1992, when I got into this particular line, उस time पे female technicians were not there. You know, it's over the years that now there are a lot of people who have now come into this field. तो मैं खुद करती थी mammography, so I really know about it. ठीक है, तो अब उस टाइम के machines और आजकल के machines में बहुत फर्क है. तो if you have to do a mammography, ideally speaking, I know इट्स एन एक्सपेंसिव मशीन, सब जगह नहीं हो सकता है कि फुल फील्ड डिजिटल मशीन, तो वो सब जगह नहीं होगी. बट अगर आपको चॉइस है, आपके पास पैसा भी है, तो आपको जाना चाहिए जहाँ पे फुल फील्ड डिजिटल मैमोग्राफी हो. जाहिर सी बात है, जो चीज ज्यादा पावरफुल होएगी वो और अच्छे से आपको सारी इंफॉर्मेशन देगी उस चीज में. ठीक है, मैमोग्राफी क्या होता है? जिस तरीके से एक्सरे होता है वैसे ही होता है, बट एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे है. अब स्पेशल एक्सरे क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि ब्रेस्ट जो है हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक ऐसे ऐसे शेप है उसका. ठीक है, साइड से हमारा थिकनेस ज्यादा हो रहा है, बीच में ऊपर आगे जाके ऊपर हो रहा है, तो उसको हम अगर फ्लैट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सरे जो होता है ना, मोटा आदमी पे हमें ज्यादा पावर देना पड़ता है, पतले में हमें कम करना पड़ता है. तो जितना अगर मोटा होगा, मोटे एरिया के लिए हमने ज्यादा दे दिया, हम रेडिएशन ज्यादा दे देंगे. तो हम उसे कम कैसे करें? हम उसे पतला करते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं, उसे फ्लैट करते हैं. ठीक है, तो बिटवीन टू प्लेट्स, यानी कि एक ऊपर कंप्रेशन प्लेट होता है, एक प्लेट पे आप ब्रेस्ट को रख रहे हैं, दूसरे प्लेट से आप उसे कंप्रेस कर रहे हैं. बट बहुत ही कम सेकेंड्स के लिए, इट्स ओनली फॉर ए फ्यू सेकेंड्स दैट द कंप्रेशन इज गिवन. और कंप्रेशन से क्या फायदा होता है? आपका फ्लैट हो गया, रेडिएशन कम हो गया, और आपका ब्रेस्ट मूव करता है. व्हेन यू आर ब्रीदिंग, इफ द ब्रेस्ट मूव्स, तो वो उसको हमने रोक दिया. अगर कोई चीज, देखिए आप एक्सरे चेस्ट कराते हैं, सांस रोकने को बोलते हैं ना, पेट भी करते तो वो बोलते हैं ना सांस रोको. क्यों रोक? अगर आप फोटो में आप हिल जाते हैं, आप देखते हैं याद आती है, तो आप उसे फिक्स नहीं करेंगे तो वो आपकी पिक्चर हिली हुई आएगी. तो इसीलिए उसे हमें फिक्स करना जरूरी है. तो बहुत ही कम देर के लिए पेन होता है. एक जमाने में जब मैं करती थी तो मैं मैन्युअली देखती थी कि ये मेरे को ठीक लग रहा है, फ्लैट हो गया, नहीं तो और करो. तो वो बहुत इंडिविजुअल था कि मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, किसी और को लग रहा है नहीं और कंप्रेस करना है. तो उसमें होता था कि पेन किसी को ज्यादा हो सकता है. अब तो कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर जज करता है, ये हो गया जी, पहुंच गया इस लेवल पे, बस इससे ज्यादा वो करेगा ही नहीं कंप्रेस. और बिल्कुल फ्यू सेकेंड्स के लिए होता है सारा प्रोसेस. मुश्किल से 7-8 मिनट में सारी मैमोग्राफी खत्म हो जाती है. You should not be scared that it's going to be a painful procedure. दर्द होगा, इससे घबराना नहीं चाहिए. पहली बात है, पेन नहीं बोलूंगी. अगर किसी को कोई ऐसी कंडीशन है, कोई सिस्ट है, कुछ है जिसपे प्रेस हो रहा है और वो पेनफुल है, अदरवाइज पेन नहीं है, डिस्कम्फर्ट बोलूंगी, पेन नहीं. और इसके लिए बेस्ट टाइम है जिन लोगों के पीरियड्स खत्म नहीं हुए हैं. आइडियली एज सून एज यू गेट योर पीरियड, तुरंत आप उसी टाइम चले जाएं, 1 हफ्ते के अंदर. तब ब्रेस्ट सॉफ्ट होती है और उस टाइम आपका प्रेग्नेंट होने का खतरा नहीं है, क्योंकि 15वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन हो रहा है, तो आपका प्रेगनेंसी होने का भी खतरा नहीं होता. विच इज द बेस्ट टाइम टू डू इट इज दैट टाइम. ठीक है, तो बिल्कुल सॉफ्ट होएगा, आपका पेनफुल नहीं होएगा. और एक बात है, जो बाकी मेनोपॉज वालों का तो कभी भी करा लें आप. और जब आप कराने जाएं, जो मैं कैल्शियम की बात कर रही थी, छोटे छोटे जमाव होता है, साबुन में कैल्शियम होता है, पाउडर में कैल्शियम होता है, डिओड्रेंट्स वगैरह में हमें पता नहीं, बट कुछ डिओड्रेंट से आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं हम. तो अगर हमें वो कैल्शियम उसमें नजर आ जाएगा और वो पता चला पाउडर की वजह से कुछ, इसलिए बेस्ट होता है आप पाउडर या सोप को अच्छे से नहा के, पूरा सोप देख लीजिएगा अच्छे से निकल जाए आपके बॉडी में से, और पाउडर ना लगाएं, डिओड्रेंट ना लगाएं.
में, और प्रेफरेबली 2 पीस पहने कपड़े। अगर आप पूरा एक जैसे बड़ा चोगा पहनेंगे तो आपको पूरा उतारना पड़ेगा, वो आपके लिए डिस्कम्फर्ट होएगा। इसलिए 2 पीस पहने, जैसे साड़ी ब्लाउज हुआ या स्कर्ट ब्लाउज हुआ या ट्राउजर टॉप हुआ अलग से, टॉप अलग हो तो वो बेहतर होएगा, ये मैं बोलूंगी। अच्छा, दूसरी बात जो कुछ लोगों को, some people feel that if they are heavy breasted or they are flat chested, then it will be a problem while getting the mammography done. इसमें मैं बताऊं, फ्लैट चेस्ट की आप जो बात कर रहे हैं, मैंने इतने मेल मैमोग्राम्स करे हैं जिसका हिसाब नहीं है, जहां पे टिश्यू ही नहीं होता था। मेल्स अक्सर पता है किस लिए आते हैं कि गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, यानी कि औरतों के जैसे ब्रेस्ट हो जाना, यानी कि ब्रेस्ट बढ़ गई उनकी, बढ़ती भी थी तो इतनी नहीं कि भाई हम उसको पकड़ के कर सकते थे, इतना छोटा होता था तब भी। उनके लिए बहुत पेनफुल हो सकता है क्योंकि इतना क्लोज हो जाता है ना वो बिल्कुल ही। बट मैंने बहुत, और टच वुड, मैं आई एम नॉट ब्रैगिंग बट एक्सपर्टीज से करना आ गया था मेरे को, बहुत सही से आ जाता था। और दूसरा जो है बड़े साइज का, हर जनरली मैमोग्राफी मशीन्स में 2 साइजेस होते हैं, हम बोलते हैं 8x10 एंड 10x12 का प्लेटफॉर्म होता है। तो बड़े से बड़े, अभी तक मेरे को 10x12 जब आ गया था उसके बाद मुझे यूजुअली कभी दिक्कत नहीं आई थी उसको करने में। मैं ये मेल के बारे में आपको बताया था कि एक इंसिडेंट बताऊंगी। मेरे पास एक पेशेंट, 36 साल का एक पेशेंट आया था, तो बहुत वेल टू डू परिवार से था, और उसने मेरे को आके बोला कि मैडम मेरे को ना गांठ हो गई है और क्रिकेट की बॉल लग गई, ठीक है, और वो गांठ भी बिल्कुल क्रिकेट बॉल की तरह थी। तो मैंने एक दिन फील किया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, सारा मैमोग्राफी करके अल्ट्रासाउंड किया, वो सारा कुछ उसका पूरा प्रोसीजर करने के बाद में पता चला वो कैंसर है, ठीक है। उसको तो लगा कि क्रिकेट बॉल लगने से, बट हुआ क्या है, उसको फील तभी हुआ जब वो द पेन हुआ, उसने हाथ, ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आते थे क्योंकि ब्रेस्ट को लोग अपना, जो मैं कहती हूँ ना कि बी ब्रेस्ट अवेयर, व्हाट इज बीइंग ब्रेस्ट अवेयर। गांव से पेशेंट्स आते थे कि मैं दूध निकाल रही थी गाय का, तो गाय ने अपना लात मार दी, ठीक है, सो द काउ किक्ड मी ऑन माय ब्रेस्ट एंड व्हाट हैपेंड, सो यू हैव पेन एंड यू पुटिंग योर हैंड देयर एंड यू एंड अप इट वाज ऑलरेडी देयर एंड यू रिलेटेड टू दैट एंड से कि ये तो गाय के दुलत्ती मारने से हुआ। Likewise, I remember one of my neighbors, she came to me and said that I was a pillion rider, scooter में पीछे बैठी थी, and I fell, the scooter turned and I fell, और उसके बाद ना तब से मेरे को बहुत पेन हो रही थी, मैंने हाथ लगाया, but it was a malignancy and unfortunately we lost her because she had come at an advanced stage. So ये सब चीजें होती हैं, तो कोइंसिडेंटल होता है कि आप, और फिर वो मानने को तैयार नहीं होते। और एक और बात है इसी टाइम पे, मैं ये बातें इसलिए क्योंकि जैसे जैसे जहन में आ रही हैं, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं इसको मिस करूं। डॉक्टर से कभी भी बात मत छुपाया करिए। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते थे कि आके मैंने उनको पूछा, पहला सवाल पूछती थी, आपने मैमोग्राफी कभी कराया है? नहीं कराया, क्योंकि कराया तो थोड़ा कंफर्ट लेवल होगा आपको कि पता होगा कि कैसे करना, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करती थी। नहीं कराया कभी, ओके। करने के जैसे लास्ट खत्म किया, तब मैं फिल्म डेवलप करने वाला वो वाला मशीन था मेरा, जैसे ही खत्म किया, डॉक्टर साहब कुछ है क्या? मैं कहा अभी तो फिल्म डेवलप कर रही हूँ। नहीं, कल ना जब मैंने मैमोग्राफी कराया था दूसरी जगह से, उन्होंने कहा था कि इसमें कैंसर है। मैं उनको देख रही हूँ, मैंने कहा आपको मैंने कितनी बार पूछा होगा, आपने मुझे बताया नहीं। और मैंने कहा ये नुकसान तो आपका है, आप क्यों 1-2 दिन के अंदर अपने आप को रेडिएट कर रही हैं, ठीक है। उस टाइम पे तो मशीन डिफरेंट थे, अब तो खैर रेडिएशन भी काफी कम हो गई। तो वो कह रही थी कि लोगों ने मुझे बोला था कि आप दोबारा दूसरी जगह से कराओ, क्योंकि जिस सेंटर में मैं काम करती थी, दीवान चंद अग्रवाल इमेजिंग सेंटर, उसका पूरा नॉट ओनली इंडिया, वेरी वेल रिप्यूटेड ग्लोबली, तो वहां से कराइए। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ फिल्म दिखा देते, मैं फिल्म को देख लेती, रिव्यू करती कि भाई मेरे को करने की जरूरत है या नहीं, और इसमें दिख भी रहा है नहीं दिख रहा है। मैंने कहा दोबारा कराने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? तो ये सब बातें जो है डॉक्टर से छिपाने वाली बात जो है वो बिल्कुल गलत होती है। So you must, and also keep your old records very very carefully. That is very important. Serial mammogram जो मैं बोलती हूँ, कई बार क्या होता है हम मैमोग्राफी को देख रहे हैं, हम कहते हैं कि मैमोग्राम ठीक लग रहा है जी, कुछ नहीं है। मेरी फ्रेंड का ऐसी डायग्नोज हुआ था, लकीली उसके 3 साल पहले का मैमोग्राम वो लेके आई हुई थी। शी वॉज ऑलरेडी 65+। अब उस एज में आप हार्मोनल चेंजेस कि ब्रेस्ट के ग्लैंड्स बन रहे हैं, उस एज में क्यों बनेंगे? और वो पेन 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 करती थी। शी वाज वन ऑफ दोस रेयर केसेस की पेन
was the symptom. तो जैसे ही हमने मैमोग्राफी करा और उसका पुराना वाला भी निकाला, हमने कहा ये एरिया बिल्कुल फैटी था इसमें। जैसे जैसे हम एज करते हैं ना, तो ग्लैंड कम हो जाते हैं ब्रेस्ट में और फैटी ज्यादा। कईयों का 80-85 में भी बिल्कुल 16 साल की उम्र जैसा ब्रेस्ट होता है, बिल्कुल ही इतना ग्लैंडुलर भी होता है। तो जैसे ही उसका देखा, मैं कहा ये तो पहले नहीं था, अब कैसे है? उससे डायग्नोज हुआ हमको। तो पुराना जो है उसको संभाल के रखे, धूप से बचा के, पानी से बचा के, कूल ड्राई प्लेस में रखे। बहुत मैंने एक्सपीरियंस करे, जो लोग आके कहते थे कि नहीं डॉक्टर साहब हम तो नहीं देंगे आपको पुराना, आप ना बायस हो जाओगे और आप ना उसको देख के रिपोर्ट बना दो। क्यों? मैंने पढ़ाई नहीं करी इस चीज की, मैं किस लिए बैठी हूँ यहाँ पे? मुझे आपके किसी और के करे हुए रिपोर्ट से रिपोर्ट बनानी है? नहीं बनानी है। सो ये ऐसे ऐसे चीजें। और हमारे यहाँ पे कहीं सुनी पे कि उसके यहाँ से कराया था हमने, उस मशीन पे कराया था और मेरा नॉर्मल निकला था, तो तू वहां जाके करा ले। ये सब चीजें, लेट्स गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स एंड लेट्स एजुकेट ईच अदर अबाउट दिस, दैट दीज थिंग्स हैव नो बेयरिंग। And you are able to compare with the previous reports, which is very important. कराएंगे, जैसे मैंने बोला फुलफिल डिजिटल बहुत जरूरी है, आइडियली करना। चलो सब जगह नहीं है, फुलफिल डिजिटल ना भी हो, टेक्नीशियन सही होना चाहिए जो सही कर सके। आपको नहीं पता चलेगा, बट रेपुटेशन तो पता चल जाती है ना कि इस जगह से मिस हो गया या क्या हुआ। मिस बेस्ट ऑफ हैंड्स में भी मिस होता है, ऐसी बात नहीं मैं बोलूंगी, बट उसने ये बगल जो है, हम 4 व्यूज करते हैं, हर ब्रेस्ट के 2 व्यूज करते हैं। तो साइड वाला एक व्यू होता है जिसमें बगल इंक्लूड होता है, क्योंकि बगल में स्प्रेड करता है कैंसर। वो बगल नहीं ढंग से इंक्लूड हुई तो नहीं दिखेगा वो हमें, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर जो पढ़ रहा है उस रिपोर्ट को, उस फिल्म को जो देख रहा है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं इस सिलसिले में आपको बताना चाहूंगी कि हमने इंडिया में एक ब्रेस्ट इमेजिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया है। तो जिसमें जो ब्रेस्ट इमेजिंग वाले लोग हैं वो सब उस पे, हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं और ईमेल पे कनेक्टेड है। तो व्हाट्सएप पे डेली, जैसे अगर फर्ज करिए मैंने कोई केस देखा, मुझे कुछ डाउट हुआ, तो हम उसमें डालेंगे, तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स उसमें हैं जो कि देख के बोलेंगे कि मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है। तो हमारी नॉलेज बढ़ती है। वी होल्ड वेबिनार्स, वी होल्ड कॉन्फ्रेंसेस, और अब तो खासकर पूरे ये जब लॉकडाउन पीरियड में इतने ऑनलाइन सेशंस हुए जिसका हिसाब नहीं है। तो जिन्होंने किताब लिखी है ब्रेस्ट इमेजिंग पे, उन्होंने हाल ही में कॉन्फ्रेंस करी और हम सब लोगों ने उनको लाइव हमने सुना, देखा। इससे हमारे जो नॉलेज में इतनी इम्प्रूवमेंट होती है, अपडेट होते हैं हम। तो ऐसे ऐसे जो लोग नहीं अपडेटेड होते हैं और जो लोग अपडेटेड होते हैं, उनमें तो फर्क होता ही होता है ना। उनके एफर्ट्स इतनी अच्छी रही है ब्रेस्ट इमेजिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया की कि 30th of October अब से हर साल उसको नेशनल मैमोग्राफी डे बना दिया गया है। मैंने पढ़ा, which is so good, yeah. So which is very good because of the efforts. तो ये ongoing process है, and very I think kudos to Breast Imaging Society for doing such a great job. What do you think? There is also a role of counseling, especially for those who do get breast cancer. Counseling would be very important. काउंसलिंग के पहले हम थोड़ा ब्रीफली ट्रीटमेंट पे बात करें कि ओके, क्या ट्रीटमेंट होते हैं? क्या सिर्फ कीमोथेरेपी है या और भी है? तो देखिए, सर्जरी और कीमोथेरेपी आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, और आजकल हार्मोन थेरेपी भी। सर्जरी जो है जरूरी नहीं है हर एक को करानी पड़े, डिपेंड करता है कि क्या स्टेज है क्या नहीं है। कईयों को, और ऑर्डर क्या होगा, कईयों को पहले कीमोथेरेपी देते हैं क्योंकि बहुत बड़ी गांठ है, उसको छोटी करने के लिए, ताकि अगर आप छोटी कर ले आपको कम एरिया ऑपरेट करना पड़ेगा, उतना सारा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सर्जरी, सबका ब्रेस्ट रिमूवल की जरूरत नहीं होती है। सारी चीजें टेस्ट करते हैं कि पूरे, ना केवल ब्रेस्ट का एक्सरे टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो फैलती है सब फेफड़ों में फैल सकती है, ब्रेन में फैल सकती है। तो पेट स्कैन होता है जो कि पूरे बॉडी में देखते हैं कि कहाँ कहाँ फैला है। इन सब चीजों पे डिपेंड होता है। कोर बायोप्सी में आपकी क्या रिपोर्ट आई है, बाकी कहीं पे स्प्रेड है या नहीं है, इन सब मैटर्स को लेके डिसाइड किया जाता है कि आपको किस एक्सटेंट तक सर्जरी करनी है। पूरी ब्रेस्ट निकालनी है या थोड़ी सी निकालनी है, बगल के गांठें निकालनी है कि नहीं निकालनी है। उसके बाद आपको कीमोथेरेपी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या रेडिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी फैक्टर्स जो है वो उसमें डिसाइड। अब वो जो मैं आपको बोल रही थी नीडल FNAC वर्सेस बायोप्सी, कोर बायोप्सी करने से उसमें हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, ER PR करके, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स कहते हैं। तो
इनको देखना जरूरी होती है कि उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है, हार्मोन थेरेपी। और उससे बहुतों को मतलब आगे बिल्कुल ठीक ठाक रहे हैं बहुत साल लोग। कीमोथेरेपी से हाँ, इट इज अ टफ थिंग टू गो थ्रू, खासकर साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। हेयर लॉस तो बहुत ही कम चीज है जी, हेयर बाल तो फिर वापस आ जाते हैं। बट इसमें जो आप कह रहे थे, बाकी काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि इट इज नॉट इजी। जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता है कि क्या है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट, एंड मेनी पीपल आर इन डिनायल वेरी वेरी ऑफन। एंड यू नो सी क्या होता है इसमें आपका, बिकॉज ब्रेस्ट के साथ इतना सेक्स सिंबल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड, लोग बताना भी नहीं चाहते, स्टिग्मा, ठीक है, एक स्टिग्मा बहुत है। whereas I am very proud of one of my friends who openly talks about it। जितने लोग बात करेंगे इसके बारे में औरों को भी फायदा होगा, बट इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहूंगी कि जिसको नहीं बताना है नहीं बताए, मगर ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आपको छुपाना है। बहुत सारे लोग इसने पाप किया होगा इसलिए इसको ऐसा, ये सब बातें नहीं सोचिए, ये किसी को भी हो सकता है। एंड सारी जो वजूहत मैंने आपको बताई वो ना भी हो तब भी किसी को भी हो सकता है। ऑल्टरनेट मेडिसिन का थेरेपी है, उसमें कोई रोल नहीं है। ये नहीं कि आप सीधा जैसी गांठ हो गई आप सीधा मैं होम्योपैथी के पास चले जाऊंगी, मैं आयुर्वेदिक पास नहीं होगा। होम्योपैथी आयुर्वेदी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आप मान ले अपनी डिजीज को बढ़ाते रहेंगे और वो तब तक फैल जाएगा, इनऑपरेबल हो जाएगा, उसका फायदा नहीं है। तो पहले आप एलोपैथ में जाके फिर देख लीजिए कि कीमोथेरेपी सर्जरी जो भी होना, उसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है, केयर के लिए, साइड इफेक्ट्स को टैकल करने के लिए। देखिए कीमोथेरेपी से नोजिया, वॉमिटिंग, हजार चीजें, ये हेयर लॉस, साइकोथेरेपी की बहुत जरूरत होती है, काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। और कई बार सिर्फ फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाता है कोई एक, क्योंकि फैमिली को भी स्ट्रेस होता है, हाँ, ठीक है ना। तो कई बार अलग अलग सबको काउंसलिंग चाहिए होती है। हस्बैंड मेरे साथ कैसे उसका रिलेशनशिप होएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, कि सपोर्टिव हो, पार्टनर जो है वो सपोर्टिव हो। यंगर एज ग्रुप में तो और भी ज्यादा, व्हेन यू हैव एन एक्टिव सेक्स, एंड कईयों को तो प्रेगनेंसी में हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर। इसलिए कहते हैं हम कि यंगर एज ग्रुप में प्रेगनेंसी करना जरूरी है, कि सपोजिंग अगर आपका कोई वो सेल जो रोग सेल है और वो आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोन चेंजेस है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो यंगर यू आर द चांसेस ऑफ द रोग सेल आर लेस। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे एजिंग से, जो म्यूटेशन और वो सेल का जो खराब हो जाना जो है, एट द सेम टाइम वी आल्सो से कि प्रेगनेंसी इज अ प्रोटेक्शन, बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है। और एक बार हो चुका है तो क्या वो रिसर्फेस कर सकता है प्रेगनेंसी के दौरान? बहुत कॉम्प्लेक्स है, बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। आई वुड आल्सो लाइक टू से कि जैसे मेरी एक पेशेंट थी एट अ वेरी यंग एज, 26 ईयर ओल्ड, शी वाज डायग्नोज्ड ड्यूरिंग हर हनीमून पे उसको पता चला कि उसका ब्रेस्ट कैंसर है, बट वो अब बिल्कुल ठीक ठाक है, उसका अब बेबी भी हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि यू आर डूम्ड फॉर एवर लाइफ, ऐसे नहीं सोचना है बिल्कुल भी। लाइफ होगी, इसमें सपोर्टिव बहुत जरूरी है जी, साइकोलॉजिकल एलिमेंट बहुत ज्यादा है। और आई एम वेरी ग्लैड कि जैसे मैं फेसबुक पे भी देखती हूँ, फेसबुक लाइव बहुत होता है, जो सर्वाइवर्स हैं उनके साथ बात करना। अच्छा, सर्वाइवर्स का बहुत ग्रुप है, बहुत ज्यादा ग्रुप्स बने, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इनके एक्टिविटीज होते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड ईच अदर। और किसके साथ क्या हो रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट, उससे फर्क पड़ जाता है। Keeping that in mind in the present situation also, because people hesitate to go to hospitals for checkups and all that. In the present scenario, you think what is the role of telemedicine platforms like Expert Online, where you can do online consultation and counseling also? So you think they can play a role? Yeah. As far as the psychological counseling goes, I have absolutely no doubts. आजकल तो इनफैक्ट माय डॉटर इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, उसका सारा काम ऑनलाइन ही चल रहा है, वहां तो हो ही सकती है। इट्स लाइक मी एंड यू टॉकिंग टू ईच अदर। बट जहाँ पे एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है, वहां अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू फील इट एंड देन it will have to be a medical kind of a blended approach. जैसे अगर किसी का कुछ, देखिए आप आंख पे भी जैसे सिर्फ लाली हो रही है दिखाना चाह रहे हैं, बट आंख का अगर टेस्ट पूरा करना है तब तो आपको जाना पड़ेगा। बट आप मोटा मोटा आप दिखा सकते हैं कि ये देखिए डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ पे ये देखिए ये गांठ सा हो रहा है, या यहाँ पे मेरे ये दाना हो गया, वहां तक तो ठीक है, आप कर सकते हैं। एंड फॉलो अप,
फॉलोअप जरूर कर सकते हैं आपकी, आपको हर बार मतलब जहाँ पे आपको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, आपके जैसे ब्लड प्रेशर का है प्रॉब्लम तो या डायबिटीज का प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करिए, आपने रिपोर्ट्स भी, आपके ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, उसमें रिपोर्ट शेयरिंग हो सकती है एंड रिकॉर्ड मेंटेन होता है। It's a health wall. आपको सड़क पे जाने की क्या जरूरत है, एंड पोल्यूशन ऑब्वियसली इट मेक्स अ डिफरेंस, कोविड और नो कोविड, वी शुड accept it as a form, alternate form. See, the risk is, forget COVID, even otherwise normally also, चाहे फ्लू हो चाहे कुछ हो, the risk was always there to the doctor also. And patient को भी जो अस्पताल में जाना इस फ्रॉड विथ रिस्क, खासकर आपकी जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जहां तक हो सके वो अपने आप को दूर रखें हॉस्पिटल से कि इन्फेक्शन को एक्सपोज ना हो जाए, वो तो रहे वो Immunity is low. Yeah. So wherever the touching bit is not involved or a procedure is not involved, the consultation, counseling, sharing of reports, second opinion, all that can be done. Okay, On that. definitely. I think it's a very good platform for that. There is absolutely no doubt about it. Yeah. So, जो आज हमने इतनी लंबी बात की, we were able to discuss so many aspects, and I'm sure there were so many doubts in the minds of our viewers that has been clarified. You've done away with so many of the myths, and what I really feel is कि एक चीज ये है कि हमें खुद अवेयर होना है, हमें hesitate नहीं करना है. We have to be very careful that we get ourselves examined. और अगर हम hesitate कर भी रहे हैं, मुझे कई बार ये लगता है कि we should make it a kind of an outing in a way, कि हम दो दोस्त हैं या तीन लोग हैं, जैसे हम आम तौर पे बात करते हैं कि तुमने ये किया, तुमने फिल्म देखी, तुम उस रेस्टोरेंट गए, उसी तरह से तुमने आपके साथ मैमोग्राफी कराई कि नहीं कराई. It should become so normal for us to discuss, and we can go out together and get it done together so that we don't feel hesitant about it. I have seen many of them do that, and I used to have patients who used to be regular like that. They used to come as a team कि इतने लोग आ ही रहे हैं और इकट्ठे ही आ रहे हैं. We have to talk about it amongst ourselves in our groups, encourage each other, keep a check on each other whether we've got our tests. This time, so many people wrote to me on Instagram that you really brought this issue to Instagram. That is what is the power of social media. Let us all exercise that. Absolutely. Why are we not using that? For all these good causes. Absolutely. Use it, Thank you, Chinna. It was so informative. Thank you so much for giving us so much time. I enjoyed doing it, and I'm always available for this. Anybody who wants to, ask me any questions, whatever I can answer. Otherwise, I will find out the answers to that problem. Thank you. It was a pleasure. Thanks. Have a great day. Thank you.